Hello, my dear students. Myself, Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। हम BA सिक्स सेमेस्टर की पैडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस सब्जेक्ट में यूनिट सेकंड के फर्स्ट चैप्टर लेसन प्लानिंग इन इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इन दिस chapter we will discuss meaning and definition of lesson planning, functions of lesson planning, merits and advantages of lesson planning, general principles and step in planning a good lesson plan, essentials of a good lesson plan. Okay, the first point is meaning and definition of lesson planning. A lesson plan is the blueprint of the teaching learning program of the teacher, which is expected to follow in his classroom teaching in his daily work. It is prepared by him and indicates the aim to realize by teaching a lesson. A lesson plan is actually a plan of action. एक्चुअल में जो लेसन प्लानिंग, हर चीज़ प्लानिंग के, कोई भी काम करेगा कोई भी इंसान तो प्लान के अकॉर्डिंग ही करेगा। इसी तरीके से जब एक टीचर एक क्लासरूम में टीच करने जाता है, स्टूडेंट्स को टीचिंग कराने जाते हैं, तो वो टीचर को भी तो प्लान करना पड़ता है ना कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे लेक्चर देना है, या फिर जो भी मेथड यूज करना है वो किस तरीके से करना है। उस मेथड जब यूज होगा तब क्या क्या जो टीचिंग मटेरियल होगा वो क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें टीचर के द्वारा एक प्लानिंग की जाती है। तो जो एक ये क्या जो भी प्लानिंग है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। प्रोग्राम जो भी टीचिंग प्रोग्राम है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। A lesson plan is actually a plan of action. It indicates the working philosophy of the teacher. Next is his information and understanding of his pupils, his comprehension of the objectives of education. Next is his knowledge of the material to be taught, his ability to use effective methods of education. जो ये लेसन प्लानिंग है इसमें टीचर की फिलॉसफी, वर्किंग फिलॉसफी होती है, एक होती है इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है और अंडरस्टैंडिंग कितनी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है स्टूडेंट्स की, वो है। कंप्रहेंसिव ऑफ द सब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशंस, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें लेसन प्लानिंग के जो एक्शंस प्लान बताया है मैंने कि एक्शन प्लान होता है, इसमें ये सारी चीज़ें इंडिकेट्स होती है। Definition given by Binning and Binning. Binning and Binning say that daily lesson planning involves defining the objectives, selecting and arranging the subject matter, and determining the method and procedure. ये बिलिंग एंड बिलिंग ने कहा लेसन प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट इज लिस्टर बी स्टैंड्स. Lister B. Stands say that a lesson plan is actually a plan of action. It therefore includes the working philosophy of the teacher, his knowledge of philosophy, his information about the understanding of his pupils, his comprehension of the objective of education, his knowledge of the material to be taught, and his ability to utilize effective methods. जो डेफिनेशंस में भी यही बात कही जा रही है कि ये जो लेसन प्लान है वो एक एक्शन प्लान ऑफ एक्शंस है, ब्लूप्रिंट है। इसमें टीचर की फिलॉसफी क्या है, वर्किंग फिलॉसफी है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी रहता है, नॉलेज रहती है, जो मटेरियल है उसकी नॉलेज आ जाती है, जो पढ़ाना है वो मटेरियल्स, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज होंगे वो सारे इस लेसन प्लानिंग में ऐड रहते हैं। Now, nature of lesson planning. According to Bushing, lesson planning is essential and experience in
एंटिसिपेटरी टीचिंग। सॉरी, एक पॉइंट रह गया था। दिस डेफिनेशन, जो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, टेंड टू फोकस द टीचर अटेंशन अपॉन आउटकम्स और रिजल्ट्स इन टर्म ऑफ द पीपल, definite process and procedure with a recognition of activity as the basic of learning, the pupils in the foreground and the teacher in the background as guide and director only the learning activity. Now we will discuss nature of lesson planning. According to Bushing, lesson planning is essential and an experience in anticipatory teaching. It is living through a advance mentally and emotionally. The classroom experience as a teacher visualize it, the eager faces, the questions that will rise, the difficulties the pupils will encounter, the way these difficulties are to be met, all these the teacher will experience in imagination. This is the first essential of good planning. It is here that teacher can bring into play to subtle power of well-developed imagination. The more vivid, the better, so long as it is a fully tinged and realism. जो नेचर है लेसन प्लानिंग का, वो एडवांस है, मेंटली एंड इमोशनली क्लासरूम एक्सपीरियंस, द विजुअलाइज है टीचर का क्या है कैसे नहीं है, ये सारी चीज़ें लेसन प्लानिंग में आती है. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ लेसन प्लानिंग. R.L. Stevens said, to every teacher I would say, always plan out your lesson beforehand, but do not be slave to it. कुछ लोग कहते हैं कि एक सर्जन, जैसे कि एक सर्जन डायग्नोसिस द केस, Bagley has put it thus, however able and experienced the teacher, he could do never without his preliminary preparation. कोई भी इंटेलिजेंट वर्कर होगा, उसका प्लान प्रीलिमिनरी जो पहले से डिसाइड होती है प्रिपरेशन, उसके बिना नहीं होता है. जो भी कोई भी प्लान करेगा, हम कोई भी चीज़ देखे हम नॉर्मल हमारे लाइफ से रिगार्डिंग देखें, तो हम अगर कुछ कपड़े भी खरीदने जाएंगे तो पहले प्लान करेंगे, यार कहाँ से कपड़े लूँ, ऑनलाइन परचेज करूँ या कौन से ब्रांड में जाऊँ, फ्लिपकार्ट से खरीदूँ, अमेजोन से खरीदूँ या फिर मिंत्रा से खरीदा, या फिर मैं ऑनलाइन ना बजा के मैं ऑफलाइन ही शोरूम पे जाके लूँ. अब शोरूम पे जाने के बाद प्रॉब्लम डिस्कस होगी कि भाई ब्रांड कौन से लूँ, मेरा बजट कितना है, सारी प्रिपरेशन की जाएगी, मेरे बजट के अकॉर्डिंग ही मैं कपड़े खरीदे जाऊँ. ये सारी जैसे प्लानिंग हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं, इसी तरीके से एक टीचर भी अपनी प्लानिंग करते हैं टीचिंग करने से पहले कि वो किस, ठीक है. नाउ इज ए सर्जन डायग्नोसिस द केस, prepares his surgical instruments before he puts the patient on the operation table. एक सर्जन भी होता है, अपने पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पर रखने से पहले वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारे अपने पास रख लेते हैं, तब जाके सर्जरी करते हैं. ए लॉयर मेक्स अटेम्प्ट्स टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर एवरी मूव इन कोर्ट. An engineer prepares his blueprint before he actually starts the construction work of a bridge or a building. The house mistries plan the details of the daily meals, and the sales managers gives careful attention to every step in proposed selling campaign. So must a teacher plan and prepare his work. Okay? जैसे एक सर्जन है, इंजीनियर है, कोई भी हाउस मिस्त्री है, ये सेल्स मैनेजर है, ये सब जो भी कुछ करेंगे तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो किया जाएगा. तो एक टीचर को भी अपना प्लान जो प्रिपेयर रखना चाहिए. कुछ फंक्शंस है. फर्स्ट, द लेसन प्लान इफेक्ट द टीचर्स स्किल, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, हिज पर्सनैलिटी. फॉलोइंग आर द चीफ फंक्शंस ऑफ प्लानिंग. It delimits the field of work of the teacher
as well as of the students and provides a definite objective for each day's work. जो लेसन प्लानिंग होती है एज वेल स्टूडेंट्स के बारे में फील्ड्स डिसाइड हो जाते हैं, उसमें जो हमारे डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ईच डे के लिए जो वर्क करना है वो सारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं इसके थ्रू. नेक्स्ट इज एज द गोल इज डिटरमाइंड द टीचर गेट्स impetus to realize his goal. मीन्स टीचर डिटरमाइन, इसके थ्रू टीचर के जो वो प्रेरणा रियलाइज होती है गोल्स को अचीव करने की, डिटरमाइंस हो जाते हैं गोल्स टीचर के. इट टेंड्स टू प्रिवेंट बेंडरिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड गोइंग ऑफ द वे. इट सर्व एज ए चेक ऑन द पॉसिबल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर्स and students. It's make teaching systematic, orderly and economically. जो इसमें क्या एक सब्जेक्ट से भटकने की जो भटक सब टीचर क्या है लेसन प्लानिंग के थ्रू सब्जेक्ट से भटकते नहीं है. सब्जेक्ट्स वो जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो सिलेबस है उससे भटकाव नहीं होता है, और टीचर सिस्टमेटिकली, ऑर्डरली और इकोनॉमिकल अपने काम को कर सकते हैं लेसन प्लानिंग के थ्रू. प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग नीडलेस रिपीटेशन. जो रिपीटेशंस होते हैं बार बार टीचिंग करते टाइम उनको भी अवॉइड हो जाते हैं इसमें फंक्शन लेसन प्लानिंग के थ्रू. प्लानिंग हेल्प द बिगिनिंग टीचर्स टू ओवरकम द फीलिंग्स ऑफ नर्वसनेस एंड इनसिक्योरिटी. इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस टू फेस टू द क्लास. जो लेसन प्लानिंग है उसके थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है टीचर की. भाई उसको जब एक टीचर को सब पता है कि उसको ये सारी चीज़ें पढ़ानी है, इस मेथड को यूज करके पढ़ानी है और इतने टाइम के ड्यूरेशन में पढ़ानी है, और ये सारी चीज़ें जब एक टीचर को पता है किस तरीके से स्टूडेंट्स को टीच करना है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है. तो इसमें जो टीचर की नर्वसनेस फील होती है स्टूडेंट्स को फेस करने की वो ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट इज लेसन प्लानिंग गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू द टीचर टू थिंक आउट न्यू वे एंड मीन्स टू मेकिंग द लेसन इंटरेस्टिंग एंड टू इंट्रोड्यूस थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज लेसन प्लानिंग इंश्योर ए डेफिनेट असाइनमेंट फॉर क्लास and availability of adequate materials for the lesson. 4 types of planning. These are gives as under: planning of the work of the year in a definite manner and in a unit. पूरी प्लानिंग कर ली अपने यूनिट्स की किस एक साल के लिए पूरा. प्लानिंग ऑफ ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट को कैसे पढ़ाना है उसकी प्लानिंग कर ली है. डेली लेसन प्लानिंग, अब डेली लेसन्स की प्लानिंग कैसे, आज ये पढ़ाना है, आज ये पढ़ाना, आज ये पढ़ाना है. नेक्स्ट इज प्लानिंग शेयर विद पीपल्स. स्टूडेंट्स के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं. पीपल्स मीन छात्र, स्टूडेंट्स. नाउ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग. फर्स्ट एडवांटेज इज, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट एडवांटेज ऑफ लेसन प्लानिंग इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इज द टीचर. लेसन प्लानिंग के थ्रू जो टीचर का कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल वो इंक्रीज हो जाता है. Delimitation of the subject matter. The teacher is well aware of the definite subject matter that he is going to cover the allotted period. जो subject matter है उसको टीचर जो allotted period है उसके अकॉर्डिंग कवर कर लेते हैं, कवर कर सकते हैं लेसन प्लानिंग के थ्रू. नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग. जो टीचर लेसन प्लानिंग के थ्रू जो टीचिंग एंड लर्निंग है उसको सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करके समझ सकते हैं कि मुझे ये पढ़ाना है और स्टूडेंट्स सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, इसके बीच में मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट सेट हो जाता है. नेक्स्ट इज सूटेबल इन्वायरमेंट. टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेज आर डिवाइडेड बिफोर हैंड. टीचिंग एड्स आर आल्सो प्री डिटरमाइंड. All these elements help the teacher to create a suitable environment in the class. Suitable environment means जिसमें टीचर को नर्वसनेस भी फील ना हो, और जो टीचर को जो टीच करना है, जो सब्जेक्ट मैटर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो मैटर भी वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली
स्टूडेंट्स को साथ शेयर कर सके, स्टूडेंट्स को टीच कर सके, और इस वे में टीचर टीच कर सके कि स्टूडेंट्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है लेसन प्लानिंग के थ्रू। लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज, जब टीचर क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को भी ऐड कर सकते हैं। दिस द टीचर प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस सीमेंट्स द न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज ऐड होती है इसमें, ताकि इससे क्या सब्जेक्ट लेसन प्लानिंग करने से पहले टीचर लेसन प्लानिंग में पता लगाता है कि स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंट लेवल कितना है, वो कितना जानते हैं और उनको कितना सिखाना चाहिए। सारी चीज़ें लेसन प्लानिंग के थ्रू डिटरमाइन होती है। तो पहले से पता रहती है कि स्टूडेंट्स कितना सीखेंगे, तो नया कुछ उतना ही जितना सीख रहे उससे कुछ नया सिखाने की कोशिश की जाती है। प्री डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़, predetermination of learning experiences to be provided to the students in the class enables the teacher to make the lesson effective. Next is orderliness in the teaching planning ensure clear cut programs and activity in the classroom. ऑर्डर बन जाता है, एक सीक्वेंस बन जाते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी एक्टिविटी हमें किस सीक्वेंस में करनी है। ये सारी चीज़ें क्लासरूम के अंदर पता लग जाती है लेसन प्लानिंग के थ्रू। Procurement of teaching aids, the teacher prepares collects the teaching aid to be used in the class. So टीचर जो लेसन प्लानिंग के थ्रू एड्स, टीचिंग एड्स कौन कौन से यूज करने वो सारे पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं कि क्लास में मुझे इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, थॉट्स प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, थॉट्स विचार, नए नए विचार, थॉट्स होते हैं, क्वेश्चंस नए नए क्वेश्चंस क्रिएट करने के और क्वेश्चंस पूछने के, आंसरिंग और फिर स्टूडेंट से आंसर लेना, उनके सारे चीज़ें। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल का सिलेक्शन भी इजीली कर सकते हैं इसी से। अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हैं लेसन प्लानिंग के थ्रू। वेल नीट लेसन्स, जो लेसन्स तैयार करेगा टीचर पढ़ाने के लिए वो वेल नीट हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज ऑफ द स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल स्टूडेंट डिफरेंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स में कि इस स्टूडेंट का जो लर्निंग लेवल है वो बड़ा है, अच्छा ये जो स्टूडेंट है इसका लर्निंग लेवल थोड़ा ज़्यादा है, इसका कम है, इसको 2 बार पढ़ानी चाहिए, दो बार पढ़ानी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी, इसको नहीं करनी पड़ेगी, कौन इंटेलिजेंट है कौन डम है, ऐसे इस तरीके से पता लग जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स बीच में। सुटेबल यूज ऑफ द ब्लैक बोर्ड, सुटेबल repeticulation and appropriate summary. Now we will discuss general principle and step in planning a good lesson plan. First is select the most appropriate aim. Aims क्या क्या रहेंगे, appropriate aim होना चाहिए। Provide the illustrative material available होना चाहिए, including crucial questions, जो क्रूशियल थोड़े कठिन क्वेश्चन है उनको भी ऐड करना चाहिए, जिनका आंसर स्टूडेंट्स शायद ही जानते हो, ऐसे क्वेश्चंस को भी ऐड करने चाहिए। कंसीडर द लेवल ऑफ द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, कंसल्ट कोर्स ऑफ स्टडी एंड ग्रेड रिक्वायरमेंट, सेलेक्ट द बेस्ट प्रोसीजर, टाई द लेसन विद प्रीवियस वंस, टेक इन टू कंसिडरेशन ऑफ नॉलेज ऑलरेडी पोजेज बाई पीपल्स, इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट असाइनमेंट। तो ये जो भी है ये सब एक गुड लेसन प्लान के स्टेप्स है। नाउ वी विल डिस्कस एसेंशियल ऑफ ए गुड लेसन प्लान। एसेंशियल एक लेसन प्लान में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड हैव क्लियर एम्स, लेसन प्लान शुड क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव जनरल एंड स्पेसिफिक टू बी अचीव, जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं वो स्पेसिफिक एम्स हो सकते हैं, कुछ जनरल एम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इट शुड बी लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज, जो हमारे एम्स है, जो हमारा टेचिंग जो ऐड है वो सब कुछ प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग लिंक होने चाहिए। इट शुड शो टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, जो टेक्निक्स है टीचिंग करने के, स्टूडेंट टीचर कौन से यूज करेगा वो शो
शुड शो होनी चाहिए इसके थ्रू। इट शुड बी रिटर्न, रिटर्न में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हमने यहाँ ये करना, मुझे ये करना दिमाग में सेट कर लिया। इंसान का माइंड एक लिमिटेड चीज़ें ही याद कर पाता है, तो भूल सकते हैं, दिमाग से निकल खिसक जाती है, कुछ चीज़ें निकल सकती है। तो इस वजह से जो हमारा लेसन प्लान है वो रिटर्न में होना चाहिए। इट शुड कंटेन सूटेबल सब्जेक्ट मैटर, जो इसका कंटेंट है सब्जेक्ट में, उसमें लेसन प्लान का वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सूटेबल होने चाहिए सब्जेक्ट मैटर के। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू सूटेबल सेक्शन और यूनिट्स। लेसन प्लान है वो जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर हमारे लेसन प्लानिंग में इस तरीके से डिवाइडेड होना चाहिए सेक्शंस और यूनिट्स में, कि वो सूटेबल सेक्शन और यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द एक्टिविटी प्रोवाइड होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट शुड शो सर्टेन रूटीन थिंग्स। इट शुड शो द इलस्ट्रेटिव एड्स। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। इट शुड रेफर टू रेफरेंसेस मटेरियल्स। It should include assignments for students. It should provide for self evaluation. It should include the summary. एक्चुअल क्या है, लेसन प्लानिंग में क्लियर एम्स होने चाहिए, प्रीवियस नॉलेज भी लिंक होना चाहिए, टीचिंग टेक्निक कौन सी यूज होंगी वो भी होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सूटेबल होना चाहिए लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग, 1 घंटा पूरा हो सके, स्टूडेंट्स के जो काम की चीज़ें वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर को अपने लेसन प्लान में नहीं, जो मुझे तो यार 1 घंटा मेरे टीचर में, अगर किसी टीचर को 1 आवर टीच करना है स्टूडेंट्स को, तो बोला मेरा सब्जेक्ट मैटर इतना होना चाहिए, कुछ भी ओवल है उसमें, ये इतना होना चाहिए, 1 घंटा निकल जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स के ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, सूटेबल हो, और उनको कुछ ना कुछ सीखने के लिए वो मोटिवेट करे, ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। तो आज हमने ये लेसन प्लानिंग का मीनिंग, फंक्शंस ऑफ लेसन प्लानिंग एंड मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग पढ़े, जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्टेप इन प्लानिंग ए गुड लेसन प्लान, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। एसेंशियल ऑफ ए गुड लेसन प्लान, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। कल हम लेसन प्लानिंग के लिए जो हार्वर्टियन अप्रोच है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, एंजॉय योर डे।